ارے بھائی آپ چپ بیٹھیں گے؟ بھائی صاحب اس کے مائک کو بند کرو. میں پیار سے بات جواب دے رہا ہوں, بیچ میں ٹپک رہے. کیا آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ میں بیوقوف ہوں کیا؟ آپ کا وقت ختم. اگر میں سوال پوچھوں گا تو پوچھے تو چپ چاپ کی. سمجھیے عجیب انسان ہے. آپ نے کیوں چیلنج کیا؟ السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عیسائیوں کا ایک ٹولہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکا ہے. لاہور بادشاہی مسجد میں ہونے والے اجتماع میں ایک عیسائی سوال پوچھ کر جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے, اور سوالات بھی انتہائی مشکل کیے جا رہے ہیں. خیر اسی دوران ایک عیسائی پادری نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آڑے ہاتھوں لیا, جو کہ سوال پوچھ کر کہتا ہے میں نے سوال ہی نہیں پوچھا. جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی یہ بات سن کر انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں اور انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے موقف کی تائید کر دی ہے. جی ہاں, تو چلیں دوستو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, پھر ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پہ اپنا موقف بیان کریں گے. میرا نام پادری علیشہ فیض عالم ہے اور میں ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے کراچی کے اندر ایک چھوٹا بچہ تھا, کرسچن بچہ, جسے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے کہا کہ کوئی مرد کا بچہ جو ہے کرسچنز میں سے, ان کے اسکالرز میں سے آئے اور میرے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرے. اور ایک جو ہے انہوں نے شرط بھی عائد کی کہ پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس نے 20,000 کے مجمع کو جو ہے اس میں تقریر کی ہو. تو میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ 20,000 کے مجمع میں پاکستان میں کوئی اسلامی اسکالر بھی نہیں ہے جس نے قابل ادیان کے حوالے سے یا کوئی ایسا معاملہ, کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کی ہو اتنے بڑے مجمع میں یا تقریر کی ہو. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ جملہ جو ہے وہاں پہ بول کے آئے. تو میں ذاتی طور پہ اس سے جو ہے کرسچن اسکالرس کے حق میں ایک غیر اخلاقی جملہ تصور کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کرسچنز جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اب جملے کس رہے ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر مرد کے بچے ہیں تو وہ اب آ کے جو ہے ہم سے ڈیبیٹ کریں, کیونکہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے تو اب وہ کیوں مطلب بھاگ رہے ہیں یا کیوں وہ جو ہے اوائڈ کر رہے ہیں. تو میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کہ اگر آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی تو آپ نے پھر چیلنج کیوں دیا, وہ بھی پاکستانی اسکالرس کو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بھائی صاحب بہت اچھا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب سنیں سوال آپ کا ختم ہو گیا. اچھا چلے, پہلے سوال نہیں ہے, سوال نہیں ہے. ارے کیوں چیلنج کیا؟ سوال ہے کیا. عجیب انسان ہے. آپ نے کیوں چیلنج کیا؟ سوال ہوا کہ نہیں؟ آپ کو اردو نہیں پتا؟ کیوں چیلنج کیا؟ سوال ہے کیا نہیں؟ بولتے سوال نہیں. جی سر میں نے سوال ہی کیا, سوال کیا. سر آپ اپنا سوال پوچھ چکے ہیں, اب آپ پلیز خاموش بولتے سوال کیا نہیں. تو یہ سوال جواب کی نشست ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی اسلامک اسکالر نے 20,000 کا مجمع اکیلے ایڈریس نہیں کیا. صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ سر تقابل دھیان کے حوالے سے میں نے. سر آپ پلیز, آپ کا سوال ابھی ختم ہو گیا, آپ بیچ میں کیوں اٹکاتے؟ یہ کا ڈیبیٹ ہے کیا؟ ہم پیار سے آپ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا, میں نے بیچ میں بحث کیا. ابھی آپ چپ چاپ سنیے. اگر میں سوال پوچھوں گا تو پوچھے تو چپ چاپ کی. آپ کا وقت ختم. سمجھیے میں نے تقابل بیان کے حساب سے کہا. اچھا میں یہاں مجمع کتنا بڑا ہے؟ 20,000 سے زیادہ ہے کیا نہیں؟ ہے کیا نہیں؟ اپنے عیسائی بھائی کو دکھتا ہی نہیں. یہاں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے. کراچی میں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے. سر یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, یہاں پہ کوئی پاکستانی اسکالر نہیں ہے. ہاں تو میں وہی تو کہتا ہوں نا. میں نے کب کہا کہ میں پاکستانی اسکالر سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کدھر بھی کہا؟ میں نے یہ کہا کہ آپ میں سے کدھر بھی کرسچین اسکالر, چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہو, اور میں جانتا ہوں پورے دنیا میں کم از کم 100 کرسچین پریچرز ہے, کم از کم ہندو بھی, جو 50,000 سے زیادہ کا مجمع پہ تقریر کرتے. سر بینی ہند کوئی ڈیبیٹر نہیں. ارے بھائی آپ چپ بیٹھیں گے؟ بھائی صاحب اس کے مائک کو بند کرو. آپ کو سمجھتا نہیں ہندی؟ اردو سمجھتا نہیں؟
आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे, मैं प्यार से बात जवाब दे रहा हूं, बीच में टपक रहे, क्या आपसे डिबेट करूं? मैं बेवकूफ हूं क्या? तुम तो फेमस हो जाएंगे, अरे डॉक्टर नाइक से डिबेट किया, सब लोग वर्ल्ड फेमस। तो किसको भी फेमस होने का है तो किसके खिलाफ? एक मशहूर इंसान के खिलाफ बात करो। ये तो इंसान की फितरत है। अभी मैं कहता हूं कि मयार के आदमी को लेके आओ ना, लोग ने तो बोलेंगे भाई ये बच्चे को मारता है। तो मेरा चैलेंज क्लियर था कि आप जो बोल रहे बिल्कुल गलत बोल रहे। आप अपनी ईसाईयत की किताब को नहीं जानते, ईसाईयत की फिलॉसफी को नहीं जानते, और आप बच्चे हैं तो किसी आदमी मर्द को भेजो ना, टक्कर के आदमी, मतलब मयार के आदमी को भेजो, जो भाई लोग उसको मानते हैं। पीएचडी की कुछ वैल्यू नहीं मेरे सामने। जो लोग मानते कम से कम 50,000, चलो 20,000, पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान के बाहर से लेके आओ। क्या ईसाईयत पाकिस्तान में महदूद है? क्या ईसाई स्कॉलर्स पाकिस्तान में क्या बाहर है? अगर अमेरिकन स्कॉलर आएगा वो अच्छा रहेगा, पाकिस्तानी स्कॉलर कौन अच्छा रहेगा? अमेरिकन या पाकिस्तानी? अमेरिकन। ये भाई समझता है पाकिस्तानी अच्छा रहेगा। हाँ, इस्लाम के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है, बराबर ना? इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है। ईसाईयत के बारे में पाकिस्तानी से क्यों करूं भाई? लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तान पे जाके बच्चे लोग को पीट रहा है। अरे मेरी इज्जत है भाई। लोग बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक मर्द के बच्चे डिबेट करो। अरे मर्द के बच्चे से डिबेट करता है क्या? इसका जवाब दिया क्या नहीं मैंने पहले सवाल में दिया कि नहीं? हैवी वेट से करता है। ये लोग सुनते ही नहीं। ये लोग पूरे घांचे की भेल है, पता है ना, घांचे की भेल घूमते रहते। वो अपने दिमाग में सवाल रख के आते, सुनते नहीं और दोहराते। यही प्रॉब्लम है। क्या मैं इसे बहस करूं? मैं पागल हूं क्या? मैं क्यों बोलता हूं? मैंने चैलेंज किया? क्योंकि ये लोग, आप बोलते यूट्यूब पे बहुत लोग ने जाकिर नाइक का जवाब दिए। आप क्या करो? आपके पादरी जो है ना, मॉरिस सिरेलो, बेनी हिन, फ्रैंकलिन ग्राहम, ये बड़े बड़े नाम है, उनके पास आपकी जो है ना वो साइन ऑफ जोना लेके जाओ और बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक को बेच करो, $5 मिलियन मिलेगा अभी आपको। लेके जाओ, वो आपको लात मार के भगाएगा क्योंकि जानता है वो फंस जाएगा। मैं अमेरिका गया हूं, यूके गया हूं, बड़े बड़े लोग से किया। तो ये बेवकूफी है कि आप लोग को शोहरत चाहिए। I can want to debate. You don't understand silent point. Waste of time. और फिर बहस करना। एक उसूल को फॉलो करना होता है। क्या बोला इसने कोऑर्डिनेटर ने? मुख्तसर सा सवाल, 3 से 4 जुमले, आपने 10 जुमले पूछे, उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप गैर मुस्लिम हैं। हम आपको मोहब्बत करते, लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। ये नाजायज फायदा, बहस कर। टाइम क्या अभी? आपके पादरी कभी 2 बजे तक के बात करते क्या? लोग को मौका देते सवाल करने का? देते क्या इन लोग? सवाल करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं सवाल करने का मौका देंगे तो प्रोग्राम बंद करने पड़ेगा। सवाल जवाब का उसूल होता है। तो मैंने जो इसको भी कहा, आप बाइबल से कहा साबित तो करो। साबित ही नहीं। कल का आदमी हो, चर्च के अंदर 30,000 लोग। अरे चर्च के अंदर खुदा की इबादत करने आ रहे हैं, पादरी को सुनने आ रहे। तो हमें कब चैलेंज करते तो टक्कर के, उसका मतलब नहीं तुमको करने का है तो आओ ना मलेशिया में, आओ मलेशिया, टिकट खरीद के हॉल हायर करो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भेजूंगा, बराबर के नहीं? हॉल हायर करो, मेरे बहुत से बच्चे स्टूडेंट दूंगा, मेरा बेटा नहीं करेगा, इसका भी मयार है। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਦੇਾਂਗੇ सामने बा दो, मैं 20 लाख देंगा हलाल दा, अपने वड्डा ले आओ मेरे सामने। मुझे बताए मेरा कोई स्टूडेंट जाके मज़ारे कायद पे खड़ा होके कहे कि ओए तकिस्मानी बाहर निकल, मैं आ गया हूं, ये निकालेंगे, वहां लगवाएंगे उसको? ते तुहाडे छोटे छोटे चूहे निकल के मनु कहते इंजीनियर गल कर, वो गल करने लिए करो, ले आओ वड्डा
हमारे साहबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया ना, बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया था गजवा हुनैन के मौका पर। एक तकब्बुराना जुमला निकल गया था कि बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिला, तुमने ये बोला क्यों? तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की वजह से मदद हुई। सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए और सामने हजारों का लश्कर है। नबी अलैहिस्सलाम अकेले आगे बढ़े। अनन नबी ला कदिब अरबनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और फिर अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की यूं फेंकी काफिरों की तरफ, जितने सामने थे सब अंधे हो गए। ये मुआजिजा जाहिर हुआ। तो जब छोटों पे बुरा वक्त आए तो बड़े मैदान में उतरते हैं। ये हमारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो निकलो ना तुसी भी, कहते हो दज्जाल तू वड्डा फितना है इंजीनियर। निकले मुफ्ती मुनीबुर रहमान के कि मैं हूं बरेलवी मुफ्तियों का इमाम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हां, इसमें कोई शक नहीं कि बरेलवियत हक पे है। इंजीनियर बात कर मेरे साथ, यकीन करें मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मैं उन्हें यहां बिठाऊं, कदमों में बैठूं उनके। निकले देवबंदी तकी उस्मानी साहब के, मैं हूं देवबंदियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। निकल इंजीनियर मुझसे बात कर, इधर नहीं तशरीफ ला सकते, ऑनलाइन बात कर लें, साजिद मीर साहब बात कर लें। और ये इनकी ख्वाहिश पे मैं कह रहा हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है बात करने की। एक कहना सामने नहीं बहता। आज तक वो है कि गड़ी शाह दी टीम का मुकाबला आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम नाल होवे हैं, जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते हो, कहनी मेरे इंजीनियर का मुनाजरा करा दो। और नसो इधरों औकात वेखो अपनी। जेड़ा बंदा उठता मेरे ते, कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लवेटो, थोड़े चंदे भी नहीं है मैं बंद कीते। मैं ना चंदा लेता हूं, अपनी जेब से खिलाता हूं, ठीक है। कोई मस्जिद लादा नहीं बनाई, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता हूं। कोई मस्जिद नहीं जिसमें मैं नमाज पढ़ूं और मैं वहां पैसे दे के ना निकलूं, चाहे मैंने वहां पानी से वुजू किया या नहीं किया। मैं कहता हूं बिजली तो मैंने इस्तेमाल की ना थोड़ी देर के लिए, और मनु कहते लादा फिरका बना लिया। जेड़ी चोरी खुद की है वो समझते दूसरा भी इंजी करता है। तो निकालो इनको, हवा लगवाओ। और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। जी तो दोस्तों देखिए आपने वीडियो, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी हू बहू वही बात की है और मुनाजरे के लिए वही शर्त रखी है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब रखते हैं। यानी जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अगर मैं हर किसी के मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करने के लिए बैठ गया तो मुनाजरे के ख्वाहिशमंद तो लाखों लोग बैठे हैं, और मैं अगर 24 घंटे भी मुनाजरे करता रहूं और मुझे उम्र नूह भी मिल जाए तब भी ये काम ख़त्म नहीं हो सकेगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ तो हर छोटा बड़ा, ईसाई, हिंदू या दीगर कोई गैर मज़हब वाला हर बंदा ही मुनाजरा करने के लिए ख्वाहिश रखता है, फिर चाहे उसे कुछ आता जाता ना भी हो। लेकिन सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ हर कोई मुनाजरा करना चाहता है। इसलिए डॉक्टर जाकिर साहब ने भी ये शर्त रखी है कि अगर मुझसे कोई मुनाजरा करना चाहता है तो कम से कम उसको कुछ आता जाता हो, कोई उसे जानता हो, और कम से कम वो 20,000 का मजमा इकट्ठा करने में तो कामयाब हो। बहरहाल दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के इस बयान ने, इस जवाब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मौक़िफ़ की भी तायीद कर दी है। यानी जो मौक़िफ़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का है वही मौक़िफ़ अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी सामने आ चुका है। तो दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।